Hello everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today in the Indian Express editorial page, there are three important articles. The first one is A Fragile Outlook, which is written by Saugat Bhattacharya. Second one is Inaction is Expensive, which is related to hoarding and black marketing. And the third one is Rural Imperative, which marks the importance of rural sector. So let's start with the first article, A Fragile Outlook, which is written by Mr. Saugat Bhattacharya. Saugat Bhattacharya ji is Executive Vice President and Chief Economist, Axis Bank. So in this article, he is focusing more on the economic development and GDP. So in the first paragraph, he has told about the GDP growth and its forecast. So now because of the COVID-19, the GDP of 2021-22, which was expected to be 11.8%, has shrinked to around 9.5 to 10.5%. And this is majorly due to COVID-19, the pandemic and the extended lockdown. Comparatively, the union budget which came up, they have expected a growth of 14.4%, which is very opposite to what the GDP is, GDP growth has shown. So actually, the growth would be of around 10 to 10.5%. So this is what he has told in the first paragraph. Now in the second one, he's saying there is an evolving target due to uncertainty involved with individual statewide infection curves. Now, this uncertainty and growth is also related to the statewide projections, their actions related to the COVID. Now here, what important factor is, that is the vaccine, that how soon the vaccine is made available to the people, especially for the service class people, because they are the one who have a very important role in the economy. Now you can just understand 1% decline in growth in GDP, 1% GDP decline in GDP growth means around 2 lakh crore पोटेंशियल इनकम. दैट मीन्स अ कट ऑफ 2 लाख करोड़ पोटेंशियल इनकम. ओके, यानी कि 1% जीडीपी अगर गिरता है तो उसका मतलब होता है कि करीब 2 लाख करोड़ का इनकम में लॉस हुआ हो. अब ये जो फोरकास्ट है, ये जो प्रोजेक्शन है, ये डिपेंड करता है ऑन टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज द कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड देयर participation in the GDP of India, and second one is the participation and the growth of small enterprises. तो ये जो पैराग्राफ है, टू एस्पेक्ट्स ऑफ आर फोरकास्ट और आर वर्थ एम्फसाइजिंग, इस पैराग्राफ में उन्होंने कॉर्पोरेट्स के बारे में बताया है, राइट, जो कि अक्टूबर और नवंबर से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेनिटी है. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव एनालाइज द डेटा विच वॉज अवेलेबल टिल नाउ. यानी कि जो लास्ट ईयर का जो एक ट्रेंड चला है कि ग्रोथ हुआ, फिर स्टेबल हो गया, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर वापस से उसमें ग्रोथ आई, उसको देखते हुए इन्होंने ये बोला है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई, और मेजरली इसका जिसने कंट्रीब्यूट किया है वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जिनका जो क्वार्टरली ये अपना ग्रोथ चार्ट शो करते हैं. यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है GVA, जिसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड. GVA इज़ डायरेक्टली लिंक टू GDP, राइट. दिस इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होता है इन दैट एरिया, इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर और एन इकोनॉमी. ठीक है, ये GDP को डिटरमाइन करता है. This GVA means operating profit of that particular company or the sector plus the employee cost, right? तो इसने अप्रैल में थोड़ा सा ग्रोथ शो किया था, और अप्रैल जून के क्वार्टर में इनका जो ग्रोथ था दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 34%, राइट, लेकिन एक्चुअल में ये 24% ही रह गया, 10% का डिक्लाइन शो किया.
अब इसमें जो इंडिकेटर्स थे कि ये हमें कैसे पता चला, वो हमें कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स से पता चला। जो इंडिकेटर्स थे वो थे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जब लॉकडाउन हुआ, दोबारा से सेकेंड वेव आया, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वो बंद हुए, उनमें प्रोडक्शन कम हुई। फाइनेंशियली लोगों ने एक्सपेंस अपने थोड़े से कर्व किए, और बिकॉज ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है कि जॉब्स भी कट डाउन किए गए। लोगों ने मूव करना बंद कर दिया, मोबिलिटी कम हो गई, फास्ट टैग से जो इनकम आती थी वो कम हो गई, लोगों का एम्प्लॉयमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हुए, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, राइट। तो इस वजह से ये जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो जीडीपी पार्टिसिपेशन था, जीडीपी में जो उनका पार्टिसिपेशन था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाय 10%, दैट वेंट टू अराउंड 24%, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी 34%। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो एक्सिस बैंक का जो कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर था, उसने मार्च में एक स्लाइट ग्रोथ शो करी थी, अपटिक इन मार्च 2021। इन्होंने 150 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज किया, और ये शो की इनका एनालिसिस ये शो करता किया इसने कि अप्रैल और मई में थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन था, राइट, विच वॉज इक्वल टू जो 2020 में जो मई था उसके इक्वल आ गया था। लेकिन मार्च में इसने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शो किया था, बट फिर से अप्रैल और मई में वापस से वो डाउन हो गया, बिकॉज अप्रैल मई में सेकेंड वेव आ चुका था। गूगल मोबिलिटी इंडिकेटर जो है वो भी यही शो करता है कि फास्टैग, जस्ट 1 मिनट, नाउ जो द गूगल मोबिलिटी इंडिकेटर वो भी यही शो करता है कि फास्टैग का पेमेंट था वो कम हो गया, लोगों ने मूवमेंट अपनी कम कर दी, व्हीकल रजिस्ट्रेशन कम हो गया, व्हीकल्स का बिकना कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल किए, बिकॉज सेकेंड वेव था, बहुत अनसर्टेनिटी है, राइट। तो गूगल मोबिलिटी इंडिकेटर भी यही शो करता है कि हमारा जो ग्रोथ हुआ मार्च में तो अच्छा हुआ था, बट अप्रैल मई में डिक्लाइन शो किया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है अराउंड 10.1% से, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो उसने ग्रोथ शो करी है, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग सीजन है, तो उसमें उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कोविड में जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो अर्बन जगह पे ज़्यादा थे, ना कि रूरल एरियाज़ में। So this was one aspect of the GDP forecast. Now second aspect is of the small enterprises, यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस में डिसरप्शंस हुए हैं, क्योंकि इस बार जो सेकेंड वेव आई है उसने जो छोटी छोटी कंपनीज थे, लो इनकम फैमिलीज थी, उनको भी उसने अच्छे से इम्पैक्ट किया है। उनकी जो सेविंग्स थी वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, और अब और भी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन आ चुकी है। नाउ द फ्यूचर ये कहता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन अगर हम देखें इस आर्टिकल में, तो वो ये कहता है कि अभी डिक्लाइन तो चल रही है, कुछ टाइम के बाद अभी in the coming few months it will become stable, and this is the pattern, this will work like this. अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कुछ 1900 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का सर्वे किया गया था, तो उसमें ये पता चला कि जो कुछ 5 स्टेट्स जो कि 50% ऑफ द इंडिया जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, हमारी कंट्री में 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलमोस्ट 50% इंडिया की जीडीपी को बूस्ट करती हैं। वो है महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, एनसीआर रीजन, राइट। बट सेकेंड वेव में इनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली महाराष्ट्र को और एनसीआर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अभी इसलिए भी पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन हो गया, जॉब्स चली गई, फिर जो इन्फेक्शन है वो स्मॉलर टाउन्स में और रूरल एरियाज़ में भी बढ़ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी अनसर्टेन सिचुएशन, बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है, कब क्या हो जाए नहीं पता। तो इसमें ऑथर ये कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद ग्रोथ कैसी जाएगी, कैसा ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है, क्या कितना एक्सपेंस करता है,
और वो कैसे एक्शंस, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन करता है, इस पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इनकम लॉस हुआ है, इनकम लॉस होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू भी कट डाउन हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कितनी जल्दी आती है, ये डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो जीडीपी है वो कितना बूस्ट करेगा। तो इस पूरे आर्टिकल में सौगात भट्टाचार्य ने ये बोला है कि सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, जीडीपी बहुत नीचे आ चुकी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है, और वैक्सीन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपनी जीडीपी को बूस्ट करने में। तो हमें सोचना चाहिए कि वैक्सीन कैसे मार्केट में जल्दी आए, सब तक पहुँचे, हर इंसान तक पहुँचे, और जिससे कि जो लोगों के अंदर जो डर है वो निकले, और हमारी जब सिचुएशन सही होगी तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये था इस आर्टिकल में अ फ्रेजाइल आउटलुक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इन एक्शन इज एक्सपेंसिव, राइट। सो इन एक्शन इज एक्सपेंसिव मतलब कि अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो वो भी हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये ऑथर होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को के बारे में पॉइंट आउट करते हुए बोल रहे हैं। नाउ बिबेक देबरॉय, ही हैज रिटन दिस आर्टिकल, ही इज द चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, राइट। इन्होंने ये बताया कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होर्डिंग मीन्स स्टॉक कर लेना चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा इस चीज़ की कमी होने वाली है मार्केट में, तो हम स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन इस होर्डिंग करना स्टॉक करना गलत नहीं है। गलत है कि इसको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी प्रॉपर लीगल लाइसेंस अगर आप बेचते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट में कमी होने वाली है तो मैंने चावल दाल इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर मैं इसको गलत तरीके से बेचने लग जाऊँ, हाई प्राइसेस में बेचने लग जाऊँ, तो वो गलत हो जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग इसी को कहते हैं, चार्जिंग हाई अमाउंट व्हेन देयर इज शॉर्टेज, राइट। नाउ वो इस पूरे आर्टिकल में ये कहते हैं कि अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं अभी अगेंस्ट दीज फेक मार्केटिंग पीपल, जो कि फेक दवाइयाँ बेच रहे हैं और होर्डिंग में, ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, अगर हम उनके अगेंस्ट अभी एक्शन नहीं लेंगे तो ये हमें ही स्ट्राइक बैक करेगा इन फ्यूचर। तो लेट्स सी व्हाट ही हैज सेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। इन्होंने कहा है कि कोर्ट ने कुछ लॉ पास किए हैं, कुछ स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, बिकॉज होर्डिंग हो रही है। रेमडेसिविर जो एक मेडिसिन है वो 70,000 पर वायल बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, ऑक्सीमीटर्स की होर्डिंग हो रही है। तो अगर अभी हम नहीं इस पर ध्यान देंगे तो ये हमें बहुत बुरी तरह से स्ट्राइक करने वाला है, स्ट्राइक कर चुका है और भी कर सकता है। तो इन्होंने इसमें ये बोला है कि अ सीजन ऑफ डार्कनेस brings out the worst among people, but the spring of hope is that it also brings out the best in the people। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो बुरे लोग हैं वो होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, फेक दवाइयाँ बेच रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो जन सेवा कर रहे हैं ताकि हमारा जो इंडिया है, हमारा इकोनॉमी है, वो इस ब्लैक फेज से बाहर निकल सके। अब जो जैसे फॉर एग्जांपल जो रेमडेसिविर है, मार्केट में बहुत कमी है, लेकिन लोग इसका फेक जो एक मॉलिक्यूल से, जो कि पॉसिबली एजिथ्रोमाइसिन है, उसको यूज़ कर रहे हैं और उसकी फेक मार्केटिंग कर रहे हैं रेमडेसिविर की तरह, जो कि पॉसिबिलिटी ये है कि वो यूके में, उत्तराखंड में मैन्युफैक्चर हो रही है, बट मार्केटिंग दिल्ली में हो रही है, राइट। एंड ये पहले भी होता आया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, पहले भी होता आया है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एसोचैम की एक स्टडी हुई थी 3 साल पहले, उसका इन्होंने जिक्र किया है। उसमें बोला है कि इस स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 1/3 जो मेडिसिन बनते हैं वो फेक होते हैं, नकली होते हैं, या तो वो बहुत ही डाउनग्रेडेड क्वालिटी के होते हैं या फिर नकली होते हैं। ये भी पूरा एक आई मीन द ऑथर इज ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि जो एसोचैम की स्टडी है वो भी पूरी श्योर नहीं थी, एक गेस ही था। उनकी एक सर्वे की गई थी, उसमें ये पता चला था कि 1/3 ऑफ द मेडिसिन जो इंडिया में बिकते हैं वो नकली होते हैं या सबस्टैंडर्ड होते हैं। अब उनके जो उनका इफेक्ट क्या है ये भी पूरा तरीके से हम नहीं बता सकते कि वो कितने खतरनाक हैं, राइट। और मेजरली ये दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, सोनभद्र, अलीगढ़, भिवाड़ी, हिसार, आगरा के आसपास होता है। और जो मेजरली जो नकली दवाइयाँ जो हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रोसिन, वोविरिन, बीटाडिन, कोसाबिल, ये सब होते हैं, या तो ये फेक होते हैं या तो ये सबस्टैंडर्ड के होते हैं,
राइट तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। अब यहाँ पे उन्होंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बताया है, DCA जिसे कहते हैं ना। DCA एक्ट जो था वो 1940 में आया था, लेकिन और ये मेजरली डील करता है विद मिस ब्रांडेड, यानी कि जिनकी ब्रांडिंग गलत तरीके से की जा रही हो, और अडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस ड्रग्स के को डील करता है, यानी कि जिसमें मिलावट हो, नकली हो, उन ड्रग्स को कंट्रोल में रखने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया था जिसे कहते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, DCA। लेकिन एक कमेटी थी जिसे हम कहते हैं माशेलकर कमेटी, तो 2003 में उन्होंने ये कहा था कि ये लॉ कितना सही है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। 56 ईयर्स से ये एक्ट प्रैक्टिस में है, बट स्टिल दे डोंट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। अभी डिससेटिस्फैक्शन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनके जो प्रोविजंस हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन कैसा है, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा ही हो रहा है, फिर जो उनके जो ऑफिसर्स हैं, रेगुलेटरी ऑफिसर्स हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है। इन 3-4 चीज़ों की वजह से ये जितना इसको फंक्शनल होना चाहिए था, जितना इफेक्टिव इसे होना चाहिए था, ये एक्ट इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए फिर 2008 में इसमें अमेंडमेंट किए गए और ये डिसाइड किया गया कि जो पेनाल्टीज़ होंगी, जो लोग नए नकली और सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बेच रहे हैं, उनकी जो पेनाल्टी होगी वो सिवियर पेनाल्टी होगी, राइट। एंड इसके लिए इसके लिए अथॉरिटीज़ में स्पेशली डिज़ाइन कोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे वो CDSCO का जिक्र करते हैं, जो कि पोस्ट मार्शेलकर कमेटी ये एक अमेंडमेंट के लिए आया था। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक असिस्ट करता है। उसमें ये बोला गया था कि न्यू टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके सैंपल्स की, और तो उसमें ये बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स बनने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। ना यह बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि क्या ये इफेक्टिव हुआ इतना, जो 2008 में जो अमेंडमेंट्स हुई, क्या वो इतनी इफेक्टिव थी? तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी इफेक्टिव थी, क्योंकि हाँ मार्केट में जो ड्रग्स आए वो थोड़े से सही आए, उनका जो रेशियो था वो कम हो गया ना। इस पर अगर हम क्वेश्चन रेज करते हैं कि नहीं अभी भी गलत है, ये है वो है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम उसके अगेंस्ट में जो एक्शन ले रहे हैं वो कितना सॉलिड है। अगर हम उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं तो हमें उस पर उसके रिजल्ट्स तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ पे हम दवाइयाँ लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो क्योंकि केमिस्ट आर नॉट अलाउड टू गिव एनी मेडिसिन टू यू विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो ये चीज़ गलत है। तो हम भी, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी इस पर डिपेंड करता है। सो द होल द जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे अगेंस्ट दीज people who are doing hoarding, who are doing black marketing, who are involved in selling and marketing substandard counterfeit drugs, then it is going to impact us in the long run. So this was all which Mr. Bibek Debroy is trying to tell us in this article, inaction is expensive. Now moving towards the last article, rural imperative. In this article, the author is trying to tell us about the importance of farm sector and their contribution towards the GDP. 2020 और 21 में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, जो फार्म सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो 3% की थी, जबकि इंडियन इकोनॉमी जो था उसने 6.5% का डिप एक्सपीरियंस किया। अब और यहाँ पे बात ये भी है ध्यान देने वाली कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो था वो 17.5% हाई हुआ था, यानी कि उसने ग्रोथ शो करी थी, जबकि मर्चेंडाइज जो सेक्टर था उसने 7.2% डिप शो किया था। अब ये क्यों हुआ? इसके 3 रीजंस है। पहला कि जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उसमें रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में केसेस कम थे, राइट। और गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन के टाइम पे जो रूरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनमें एग्जेम्पशन शो किया था, उसमें बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था गवर्नमेंट, तो उस वजह से जो गांव की, जो छोटे सेक्टर्स की, जो रूरल एरियाज थी, उनकी
उनमें ग्रोथ मिला। दूसरा ये भी था कि रेन बहुत अच्छे हुए थे, फेवरेबल विंटर टेम्परेचर था, तो ये भी एक रीज़न था कि फसल अच्छी हुई। और तीसरा ये था कि अक्टूबर के टाइम पे जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्राइजेस थे उसने हाई शो किया था, स्पेशली सोयाबीन, सरसों, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, अरहर, उड़द और चना में, जो कि अपने एमएसपी से कई गुना ज़्यादा रेट पे बिके थे। इसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्टअप मिला था, जबकि बाकी सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसने इकोनॉमी को बूस्ट किया था, एक तरीके से एक कुशन प्रोवाइड किया था। लेकिन इसमें सेकंड पैराग्राफ में ऑथर ये कह रहे हैं कि अब ये कुशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी डाउट है, क्योंकि सेकेंड वेव ज़्यादा इफेक्टिव है और सेकेंड वेव जो है हर गांव में, हर छोटे शहर में, रूरल एरियाज में अच्छे से जा चुका है, राइट। एंड आईएमडी ने भी जो है, आईएमडी उसने भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने भी ये बोला है कि ऐसा हो सकता है कि जो मानसून आएगा, जो रेन्स आएगी, वो साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादा होगा। और जो फूड प्राइस इंडेक्स है, एफएओ ने जो फोरकास्ट दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने ये कहा है कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो 83 मंथ का हाई शो कर रहा है, राइट। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द स्प्रेड, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पैंडमिक। अब जो इस पैंडमिक है, जो ये कोविड है, ये कितना टाइम तक रहता है, कितना हाई इंटेंसिटी के साथ हिट करता है, ये बहुत इफेक्ट करेगा कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा ग्रोथ शो करता है या डिप शो करता है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें बहुत अच्छी कही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। पहला, उसने बहुत ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया था, कुछ ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा प्रोक्योर किया था, जिसको बाद में उन्होंने बेचा था मार्केट में आफ्टर लॉकडाउन, जैसे कि वीट, पैडी, मस्टर्ड और राबी पल्सेस को उन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया था। सेकेंडली, उन्होंने मनरेगा के अंडर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया था। जो स्टैटिस्टिक्स है वो है 389.97 करोड़ पर्सन डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया था लोगों को, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी की थी। प्लस तीसरा ये किया था कि उन्होंने जो पीएम किसान स्कीम के अंडर फार्मर्स के अकाउंट में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे थे, हर 3 महीने पे 6,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे थे, राइट। तो ये 3 चीज़ें अच्छी की थी। तो अब जो गवर्नमेंट को जो फोकस करना चाहिए वो ये है, क्योंकि अभी जो है वो मनरेगा इतना इफेक्टिव नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट देना मनरेगा के थ्रू, क्योंकि कोविड गांव तक पहुंच चुका है, छोटे छोटे इलाकों तक पहुंच चुका है। दूसरा, एमएसपी पे भी ज़्यादा ग्रेन्स नहीं बिक पाएंगे, कुछ ही ग्रेन्स बिकेंगे। और तो इस वजह से गवर्नमेंट को जो ध्यान देने वाली बात है, गवर्नमेंट को जो ध्यान देना चाहिए वो मेजरली फोकस करना चाहिए कैश फ्लो पे, यानी कि, और यहाँ पे जो जन धन आधार मोबाइल योजना जो आई है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो स्कीम है ये चेक करता है सब्सिडीज़ को, कि क्या जिनको सब्सिडीज़ चाहिए वही सब्सिडीज़ उन्हीं को मिल रहा है या लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हर फ्रंट पे आके, तो उसको जो जैम स्कीम है, जन धन आधार मोबाइल स्कीम है, जिसमें कि मोबाइल से आधार और सब कुछ इंसान का लिंक हो जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये था इस आर्टिकल में। आई विल सी यू अगेन आफ्टर 2-3 आवर्स विद द वोकेबलरी थिंग, बिकॉज बहुत सारी वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं विच आई थिंक यू शुड बी knowing. So see you again after some time. Till then, take care. Bye bye.